প্রতিটি অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নিয়ে শুরু করছি আজকের ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাব সরাসরি বিস্তারিত খবরে। রবিবার আসানসোল উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত 23 নম্বর ওয়ার্ডের টিএমসি প্রার্থী মলয় ঘটকের সমর্থনে এক বিশাল র্যালি বের করা হয়। এদিন এই র্যালিতে প্রার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর সিকে রেশমা, বান্টি চক্রবর্তী সহ এলাকার বিভিন্ন টিএমসি কর্মীরা। এই র্যালির মাধ্যমে টিএমসি প্রার্থী মলয় ঘটক সাধারণ মানুষকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী করবার জন্য আহ্বান জানান। आने वाले 26 अप्रैल को विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी मलय घटक को जोरापुर विधान में वोट देके भारी वोटों से विजय बनाए। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। কালবৈশাখীর প্রথম ঝড় শিল্পাঞ্চলের সবকিছু উলটপালট করে দেয়। শনিবার বিকেলে কালবৈশাখী ঝড়ে শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা উলটপালট হয়ে যায়। এদিন শিল্পাঞ্চলে বেশ কিছু জায়গায় গাছ, ইলেকট্রিক পোল ভেঙে পড়ে এতে সাধারণ মানুষকে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। पूरा रोड ब्लॉक है। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্দাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ।
शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। শনিবার আসানসোল স্থিত নিগা অ্যালোড্রামে সভা করতে আসেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন এই নির্বাচনী জনসভার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ওপর নানা রকম অভিযোগ তোলে। ये उन्हें समय की बर्बादी लगता है और जब दीदी के तोलाबाज कोरोना के दौरान भेजे गए राशन को लूटते हैं तो वो उन्हें खुली छूट देती है। केंद्रीय टीमें चाहे सहयोग के लिए आए या फिर करप्शन की जांच के लिए, दीदी उनको रोकने के लिए पूरे संसाधन लगा देती है। दीदी केंद्रीय वाहिनी ही नहीं, सेना तक को बदनाम करती है। राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाती है। दीदी खुद को देश के संविधान से ऊपर समझती है। दीदीर चोखे अहंकारेर पर्दा, दीदी की आंखों पर अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ है। भाइयों और बहनों, दीदी की राजनीति सिर्फ विरोध और गतिरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि दीदी की राजनीति प्रतिशोध की खतरनाक सीमा को भी पार कर गई है। बीते 10 साल में बीजेपी के अनेकों कार्यकर्ताओं की हत्या, पहले कई पीड़ित परिवारों से बात हुई है। दीदी की वजह से न जाने कितनी माताओं ने अपने बेटों को खोया है, न जाने कितनी बहनें आज भी अपने भाई का इंतजार कर रही है। दीदी की निर्ममता, उनकी असंवेदनशीलता हमें कुछ दिन पहले ही फिर एक बार दिखाई दी है, सुनाई दी है। साथियों, कुछ बिहार में जो हुआ उस पर कल एक ऑडियो टेप आपने सुना होगा। वो ऑडियो टेप सुना क्या आपने? सुना? 5 लोगों की दुखद मृत्यु के बाद दीदी किस तरह राजनीति कर रही है, ये इस ऑडियो टेप के अंदर साफ साफ खुल गया है, सामने आता है। इस ऑडियो में कुछ बिहार के टीएमसी नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ
रैली निकालो। दीदी वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगी आप? सच्चाई ये है कि दीदी ने कुछ बिहार में मारे गए लोगों की मृत्यु से भी अपना सियासी फायदा करने की सोची। शवों पर राजनीति करने की दीदी को बहुत पुरानी आदत है। साथियों, दीदी ने बंगाल में यह हाल बना दिया है। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। রবিবার আসানসোল উত্তর বিধানসভার সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী মোহাম্মদ মুস্তাকিম এক সাংবাদিক বৈঠক করেন। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে তিনি জানান, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তাকে নানা রকমের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে তিনি আরো কি বলেছেন আমরা শুনে নেব। 10 लाख लोगों को आह्वान किया था कि इसके खिलाफ एकजुट होकर पीसफुल एक प्रोटेस्ट करें। उस प्रोटेस्ट को कैंसिल कराने के लिए कई तरह की कोशिशें की गई। उस कोशिश के बाद जब हमारी कामयाब हो जाता है मिलियन मार्च, उसके बाद से भी काफ़ी दबाव हमें दिया गया और 18 मार्च 2020 को हमें एक फर्जी मुकदमा बनाकर और तार जोड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 1 मार्च को क्या होने वाला था उसका विवरण, उसका सबूत एक बंदा है जो एक अपराधी है और वो अपने बयान में लिखता है कि 1 मार्च 2020 को जो मिलियन मार्च बुलाया गया था इंसाफ इंडिया की ओर से, उस मिलियन मार्च को में बम फेंकने के लिए उसे 25 लाख रुपए देने का बात कहा गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक अपराधी है जो उसने अपने कबूलनामा में कोर्ट के सामने कबूल किया है। क्या नाम हो? पवन कुमार सिंह। वो झारखंड के कोडरमा जिला का रहने वाला है। उसके बाद वो कहता है कि मैं और मेरा एक साथी जिसका नाम है मुरारी यादव, दोनों के साथ 2 बंदे, एक परवेज आलम, दूसरा बंदा निहाल बेग बैठाया था मुलय घटक और पूछू घटक के साथ। एकदम ध्यान से रखिएगा, एक कनेक्शन जोड़ा गया था कि 1 मार्च 2020 को इंसाफ इंडिया द्वारा आयोजित CAA NRC के खिलाफ जो आंदोलन होने वाला है उसमें बम मारना हो, बम मार के लोगों को घायल करना है ताकि शहर में बड़े स्तर पर दंगा हो। उस दंगा को कराने के लिए उसे 25 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था, प्रस्ताव दिया गया था, उसने अपने कबूलनामा में किया है। जब वो बाहर निकला उसने उसी के स्टेटमेंट के मुताबिक कि ये नरसंहार हो जाएगा, हम नरसंहार नहीं कर सकते हैं, हम नरसंहार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरे आदमी को सेट किया गया। सेट करने के बाद क्या हुआ, उसका नाम है गुज्जर यादव उर्फ राजेश यादव। उसको 10 लाख रुपये अग्रिम राशि दिया गया। 10 लाख रुपया अग्रिम राशि दिया गया कि वहाँ पर एक भीड़ लगेगी, उस भीड़ में बम मारना है और बम जब मारोगे तो दंगे होंगे, शहर में बड़े स्तर पर दंगा हो। उस को दंगे में बदलने के लिए ये किसकी प्लानिंग थी? 4 जन बैठे थे। एक शहर के जो अभी मंत्री हैं, लास्ट 10 ईयर से मंत्री है मुलय घटक, वो शहर को क्यों जलाना चाहता था? सवाल है, शहर को क्यों जलाना चाहता था? दंगा क्यों कराना चाहता था? 1 मार्च 2020 को ध्यान रहे कि 1 मार्च 2020 के 1 सप्ताह पहले इसी शहर में RSS का सरसंघचालक आया हुआ था। चूँकि मैं सारे क्रोनोलॉजी को फाइंड आउट किया हूँ, मुझ पे जो दमन किया है, जो इनजस्टिस किया है, और मैं सबूत के साथ आया हूँ, ताकि ये अगर दंगा होगा तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी कहाँ जाएगी? RSS पे जाएगी कि RSS वालों ने ये दंगा कराया है और उस दंगे में हम जैसे लोगों को मार देने की इनकी प्लानिंग थी। पवन कुमार के स्टेटमेंट के मुताबिक जो बयान उन्होंने दिया है कि मैं इस अपराध को करने से जब इनकार किया और मुझे गुप्त सूचना मिली कि हम जो है ये घटना घट जाएगी, इसके 10 लाख रुपया पेमेंट किया जा चुका है। एक बंदा जो नेता है उसका नाम मुलय घटक है और एक पुच्चू घटक है, इन लोगों ने प्लानिंग कर ली है। तब उसने आसनसोल पुलिस को खुफिया तरीके से गुप्त सूचना दी कि ऐसी घटना हो सकती है। उसके गुप्त सूचना के कारण हमारा जो है 3 जगह बदला गया जो आयोजन होने वाला था। मैं उसको आपको दिखाऊंगा, मेरे पास सबूत भी है।
किसी के मोबाइल पे मैंने भेजा था ना, एक मिनट, मेरी जो आयोजन मिलियन मार्च एट आसनसोल अगेंस्ट CAA NRC एंड NPR, मैंने ये पोस्ट किया था 15 फरवरी 2020 को। आप लोग चाहें तो कैमरा में नोट रिकॉर्ड कर लें, ठीक है जी। ये पहला मैंने अनाउंसमेंट किया था 15 फरवरी 2020 को कि मैं मिलियन मार्च करने जा रहा हूँ CAA NRC, सॉरी, हाँ, सिद्दीकी मेरा फेसबुक आईडी है, उससे पोस्ट होता है कि 1 मार्च मिलियन मार्च काजी नजरुल यूनिवर्सिटी टू काजी नजरुल बाग, यानी जो काजी नजरुल बाग हमने हाटन रोड के पास बनाया था, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी से चलेगी और काजी नजरुल बाग तक वो एज ए रैली आएगी। ये 18 फरवरी को हमने पोस्ट किया था। নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রির সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। এবার টিএমসির রাজ্য সভাপতি শিবদাসন দাশু এক সাংবাদিক বৈঠক করেন। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে তিনি জানান, দেশের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে মমতা ব্যানার্জির ওপর কটাক্ষপাত করেছেন সেটি তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান। শুনুন, ইলেকশনের সময় বলছি তো ফার্স্ট টার্মস তো আপনি পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেকেন্ড টার্মস তো লোক পাওয়া যাচ্ছে না। কেন পাওয়া যাচ্ছে না? ये इलेक्शনের समय तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं। इलेक्शन तो कोयला को लेके कल और जो बात रखा हो, तो आप लोग सोचिए, यही दोंगी बाबा पश्चिम भारतवर्ष में कमदा में आने के बाद 2014 में तो ये दोंगी बाबा कमदा में आया था। ये कमदा में आने के बाद भारतवर्ष का क्या उन्नयन किया? एक तो उन्नयन वो बैठ के देखा है, बोल के देखा है। जितना झूठा वादा किया हिंदू मुसलमान करके आपको वोट किया है, कमदा में आया। इंडिया पाकिस्तान करके वोट किया है, कमदा में आया। काम का जरिए आया नहीं। ममता दी पश्चिम बंगाल में काम का जरिए तीसरा बार कमदा में आ रहा हूं। ये नीरज मोदी कौन था? रिलायंस का मुकेश अंबानी पहले क्या था, अभी क्या है? अदानी ग्रुप कौन लाया? ये अदानी ग्रुप को विजय मालविया को इतना लोन कौन दिया था? ये सब किसका साथ है? ये लोग तो भारतवर्ष में बीजेपी का फाइनेंसर है। अरे ये लोग को लुका के रख रहा हूं। आप तो जितना 2 नंबरी आदमी को लेके तो आप सरकार चला रहा हूं। साधारण आदमी को कोई गुण नहीं मिला आपका सरकार में। भारतवर्ष में बीजेपी कमदा में आने के बाद साधारण आदमी को कोई बेनिफिट नहीं मिला है। बेनिफिट मिला है किसको? मुकेश अंबानी को बेनिफिट मिला, अदानी ग्रुप को बेनिफिट मिला है। पहला अदानी किया था, आज अदानी किया है। आप देखिए ये सब किसका आदमी है? ये दोंगी बाबा का आदमी है। अरे ये दोंगी बाबा पश्चिम बंगाल में आके लंबा लंबा डायलॉग मार रहा हूं। हम लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उसको निंदा कर रहा हूं और हम लोग उसको जाना नहीं चाहता है। भाई तृणमूल कांग्रेस कमदा में रहेगा, आप लोग कुछ नहीं कर सकता है पश्चिम बंगाल में।
अब 2018 रामनवमी के बारे में बोला, जो इस जिला के अंदर में जो घटना हुआ था, कौन लिख के दिया है उसको हमको मालूम नहीं है। ये रामनवमी में दंगा भड़काने वाला कौन था, जो आज तृणमूल कांग्रेस से जो भागा बीजेपी में, वो बीजेपी का प्रार्थी है, उसको तो रगड़ा था। ये रेल पार के अंदर में उसको ईटा पत्थर चलाया था, यही रानीगंज के अंदर वो ढुका था, रानीगंज में उसको भागने पड़ा, उसका लीडरशिप वो दिया था। और वही आदमी को आपका बगल में बैठा के आप 2018 का बात उठा रहा हूं। अरे वोट लीजिए। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। রবিবার বিজেপির সদস্য কৃষ্ণপ্রসাদ এক সাংবাদিক বৈঠক করেন। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে তিনি জানান, প্রভু ছটঘাটের রাস্তা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বন্ধ করা হচ্ছে এবং তিনি জানান এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের পিছনে টিএমসি প্রার্থী মলয় ঘটকের হাত রয়েছে। টিএমসির ব্লক প্রেসিডেন্ট উৎপল সিনহা জানান, বিজেপির সদস্যরা ধর্মের রাজনীতি করছে, এবার রাজনীতিতে ছট মাকেও টেনে আনছে। তিনি জানান, ছটঘাটের সৌন্দর্যকরণের কাজ খুবই শীঘ্রই চালু করা হবে। आज देखिए विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का है कि पिछले 1 साल से जो यहाँ पे समस्या था, ब्रिज हो रहा था, ब्रिज समाज के लिए ज़रूरी है। हम लोगों ने पूरे टीम, पूरा ली क्लब का, पूरा यहाँ समाज का लोगों ने बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया। कॉन्ट्रैक्टर साहब सामने हैं, हम लोग मदद किया इनका, लेकिन इनका कमिटमेंट जो था 1 साल से वो नहीं हो पाया। लेकिन आज प्रशासन के साथ में रख करके आज हम लोग एक समझौता हो गया है कि जो भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जो भी घाट का नुकसान हुआ है, यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है, प्रशासन के लोग हैं, अभी हम लोग लिखित भी कर लिए हैं, पेन पेपर में इन राइटिंग भी हो चुका है कि जैसा घाट था उस तरह से इन्होंने घाट को बना करके देगा कि हमारे जो माता हैं, बहन, श्रद्धालु, किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, तो उस तरह के ये सजा देंगे। रही बात कि यहाँ पार्किंग का विषय इनका नहीं है, यहाँ के लोकल प्रशासन का है, लोकल यहाँ गवर्नमेंट का है कि ये पार्किंग जो हजार गाड़ी, आप पीछे देखिएगा, एक बार कैमरा उठा के देख लीजिए कि पीछे पार्किंग को बंद कर दिया गया। 7-8 फुट का बड़ा बस आता है, हज़ारों की संख्या में यहाँ बड़े गाड़ी रहते हैं, छोटे गाड़ी रहते हैं, तो ये पूरा पार्किंग एरिया को बंद कर दिया गया। साथ में घाट को भी छोटा कर दिया गया। तो कॉन्ट्रैक्टर साहब का जो अपना जो हम लोग का डिमांड था वो पूरा कर दे रहे हैं, उनसे हम लोग कोई शिकायत नहीं है। वो काम दादा अपने कখন दिए काज शुरू करबें 1-2 दिन में। आज हम लोग को कष्ट কৃষ্ণপ্রসাদ একটা প্রেসমিট করেছেন, প্রেসমিটের মাধ্যমে তিনি জানান ছটঘাটে যে রাস্তাটা বন্ধ করা হয়েছে এটা বিধায়কের ইশারাতে হয়েছে, উনি অভিযোগ করেছেন। এই বিষয়ে আপনি কী বলবেন? এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ছোট মায়ের পুজো আমরাও করি এবং মলয়দা প্রত্যেক বছর ওই ছোটঘাটে মলয়দা নিজে উপস্থিত থাকেন। একটা শহরের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কানলা বলে একটি গ্রাম, যেটা শহরের এই ব্রিজের ছোঁয়ায় সেই গ্রামের লক্ষাধিক মানুষ উপকৃত এবং তার সামনে একটা ইউনিভার্সিটি রয়েছে, পাশে ছোট ঘাট আছে। আগামী দিনে ছোটঘাটকে কি সুন্দরভাবে বানানো যাবে সে পরিকল্পনাও আমাদের সরকারের রয়েছে। প্রত্যেকটা ছোটঘাটকে আমরা ছোট মায়ের শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করে পুজো করি। আমরা প্রত্যেকেই হিন্দু রীতিরেওয়াজ অনুসারে আমরা ছোট মায়ের পুজো করে থাকি। অতএব এই ছোট মায়ের ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি খেলছে, মানুষে ভেদাভেদ আনছে, আজকে ছোট মাকেও তারা টেনে এনেছে। আমার মনে হয় কৃষ্ণপ্রসাদজি এটা যেটা করছেন এটা ভুল পদক্ষেপ এবং ঘৃণ্য রাজনীতি। উনি বলেছেন কি যে পার্কিংয়ের ব্যবস্থাটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোনোটাই আমার মনে হয় না উনি সঠিক বলেছেন। এর আগেও উনি বস্ত্র বিতরণ, চাল বিতরণ, ডাল বিতরণ করতে এসেছিলেন। উনি বলেছিলেন আমি সমাজসেবী, আমি বলেছিলাম উনি রাজনীতি করতে এসছেন। আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে উনি রাজনীতি করতে এসেছিলেন, কিছু জায়গাতে ডাল চাল বিলি করে কোভিডের সময়। আর আজকে উনি নতুন করে যেটা বলছেন এটাও আগামী দিনে মিথ্যে প্রমাণিত হবে। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি।
গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। সারা দেশের সাথে সাথে শিল্পাঞ্চলেও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে পালিত হলো চৈত্র মাসের ছট উৎসব। এদিন শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন ছট ঘাটে ছট ব্রতীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন। दूध लिए दूध दूध दिवा कराए भ्योट झगड़ा करे के लेल बोलबे ना, तबियत तब अपने खराब रही है। रुपया कहाँ से आए खटिया बोलते নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস নিউজ এই পর্যন্তই। আবার দেখাবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।